क्या बात वाओ है, अमेजिंग, कितना प्यारा। জবরদস্ত। তৃতীয় টার্মিনাল থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় টার্মিনালে যাওয়ার জন্য সংযোগ সড়ক থাকবে। এই তৃতীয় টার্মিনালটি নির্মাণের জন্য কাজ করছে জাপানের মিৎসুবিশি এবং ফুজিতা ও কোরিয়ার স্যামসাং। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, बहुत यहाँ हम वीडियो है बांग्लादेश में। आपको पता है कि ढाका एयरपोर्ट जो बन रहा है बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं। वो सिंगापुर का चंगी जो एयरपोर्ट है ना जी, उस तरह का बनाया जा रहा है और बहुत ही लेविश, और जिसको डेकोरेट जो किया जा रहा है, खूबसूरत इतना बनाया जा रहा है कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी। इसके अंदर दो बड़ी कंपनी दुनिया की काम कर रही हैं, जिसमें आपको बताएंगे जापानीज और साथ साथ कोरिया की। कोरिया की जी करें बात। जापान की जो है वो मित्सुबिशी कंपनी है, और साथ में कोरिया की सैमसंग कंपनी, जो कि दुनिया की मशहूर व मारूफ जो बहुत ही पॉपुलर कंपनीज हैं दुनिया की, वो इसके अंदर काम कर रही हैं। सर्विसेज हैंडलिंग सब कुछ यही करेंगी, और उसको आपको बताएं कि जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, ये तो भाई दुनिया हैरान हो जाएगी। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा और अच्छा ये एयरपोर्ट बन जाएगा ढाका का। सिंगापुर का जो चिंगी एयरपोर्ट है उससे भी बड़ा और उससे लेविश बनाया जा रहा है इसे। ये साउथ एशिया की, मैं कह रहा हूँ कि नक्शा वाकई में बदल जाएगा, हब बन जाएगा, इकोनॉमी हब बन जाएगा ये बांग्लादेश। देखिए ना, उसके साथ सबको कनेक्टेड किया जा रहा है। ढाका मेट्रो रेल है, अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, एलिवेटेड है, टनल भी बनाया गया है, एलिवेटेड है, और बस सारे ट्रैक हैं उसके साथ जो जोड़े जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे है। बिल्कुल, ये हर चीज जो इसके अंदर मौजूद है, हर चीज इसके अंदर वो मिलेगी जो आपको चाहिए। तो बांग्लादेश जिस तरह से डेवलप कर रहा है, मैं कहता हूँ कि ये वाकई बांग्लादेश के लिए। तो बढ़ते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, इस दूसरे हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यों। क्या बात, अमेजिंग, कितना प्यारा, জবরদস্ত। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত। সামনের দিকে এটি হচ্ছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ। এবার এই দিকটিতে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্লাইওভার, সংযোগ সড়ক, টার্মিনালটির ভিতরের অংশে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ, আন্ডারপাস, বহুতল কার পার্কিং, পুরো এই তৃতীয় টার্মিনালটির মূল অবকাঠামো, আমদানি এবং রপ্তানির জন্য আলাদা কার্গো কমপ্লেক্স, এছাড়াও আরো বেশ কিছু অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলছে। साउथ एशिया का सबसे बड़ा बन जाएगा। सेम डिजाइनर है, वही आर्किटेक्चर यहाँ पे भी काम कर रहे हैं जो वहाँ पे करते थे। সামনে এখানে যে ফ্লাইওভারটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে বিমানবন্দর সড়ক থেকে যারা তৃতীয় টার্মিনালের দিকে যাবে তাদের জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লাইওভারের উপরের অংশে ঢালাইয়ের কাজগুলো হয়ে গেছে। জবরদস্ত। এটি হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। বিমানবন্দরের দিক থেকে বনানীর দিক পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের পুরো অবকাঠামোটি দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে সেই অংশটি দেখিয়েছিলাম। এক্সপ্রেসওয়ের একটি র্যাম্প বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালের সামনের দিকে গিয়ে নেমেছে। জানা গেছে এটির ফলে সরাসরি এক্সপ্রেসওয়ে থেকে তৃতীয় টার্মিনালটিতে প্রবেশ করা যাবে। তৃতীয় টার্মিনালটির ভিতরের অংশে বর্তমানে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলছে। জানা গেছে চলতি বছরের অক্টোবরে এই তৃতীয় টার্মিনালটির আংশিক অংশের উদ্বোধন করা হতে পারে। सबको साथ कनेक्ट कर रहे हैं। এটি হচ্ছে বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালটির ভিতরের বর্তমান চিত্র। नक्शा देखा है, कमाल है। বিমানবন্দর এই তৃতীয় টার্মিনালটিতে প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য দুপাশে থাকবে ফ্লাইওভার। তৃতীয় টার্মিনালটিতে প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য কোনো সিগন্যাল থাকবে না। সামনে এখানে যে ফ্লাইওভারের কাজটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল থেকে বিমানবন্দর সড়কে যাওয়ার জন্য। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে কিছু পিলারের উপর গার্ডার বসানোর কাজটি বাকি আছে। তৃতীয় এই টার্মিনালটি 3 তলা বিশিষ্ট। এই ফ্লাইওভারটির সামনের এই অংশটিই হচ্ছে পার্কিং এরিয়া। এখানেই সব যানবাহনগুলো পার্কিং করবে। पार्किंग एरिया भी बता रहे हैं। नदी भी है साइड पे ना पीछे। এই পার্কিং এরিয়ার পুরো অবকাঠামোটি দেখা যাচ্ছে দৃশ্যমান হয়েছে। জানা গেছে নতুন এই পার্কিং এরিয়াতে একসাথে 1300 গাড়ি পার্কিং করা যাবে। 3 माले हैं, मेरा ख्याल 3 फ्लोर्स हैं इसके शायद। ফ্লাইওভারের এই অংশটি যারা গাজীপুর, টঙ্গী, উত্তরার দিক থেকে এসে এই তৃতীয় টার্মিনালটিতে আসবে, বিমানবন্দর সড়ক থেকে একটি ফ্লাইওভার সরাসরি এই তৃতীয় টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তৃতীয় টার্মিনালটির যে মূল অংশ সেটি সামনের এই দিক পর্যন্তই। क्या खूबसूरत सीन है।
बहुत एरिया कवर किया है, बहुत बड़ा है। সামনের দিকের এই অংশটি হচ্ছে আন্ডারপাস। সামনে বাম পাশে বিমানবন্দর সড়কের যে ইউটার্নের অংশ তার ঠিক সামনের এই অংশেই আন্ডারপাসটি। জানা গেছে বিমানবন্দর এই তৃতীয় টার্মিনালটির গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এর কাজটি পেতে পারে জাপান। বিমানবন্দর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের একটি অংশ গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং। বিমানবন্দর প্লেন অবতরণের পর পথ দেখিয়ে পার্কিং বেতে নেওয়া, দরজায় সিঁড়ি লাগানো, যাত্রীদের মালামাল উঠানামানো, চেকিং কাউন্টারে সেবার মতো কাজ গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় টার্মিনাল থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় টার্মিনালে যাওয়ার জন্য সংযোগ সড়ক থাকবে। এই তৃতীয় টার্মিনালটি নির্মাণের জন্য কাজ করছে জাপানের মিৎসুবিশি এবং ফুজিতা ও কোরিয়ার স্যামসাং। तो व्यूअर्स आपने वीडियो देखी, कोरियन, सैमसंग और मित्सुबिशी जापान, ये दो मुल्कों की बड़ी कंपनी आपको पता है वो बना रही हैं जनाब। इसके ऊपर सारा वो सर्विस हैंडलिंग और उसको लेकर वही सारा कुछ इसकी मैनेजमेंट सारी जो है इसके इनॉग्रेशन के बाद जो है वो कोरिया और जापान की कंपनीज जो है वो हैंडल करेंगी इसे। और लेकिन देखें जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 70% तक जापान कर रहा है। और साथ में एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप एयरपोर्ट तो बना लिया उन्होंने, इतना लेविश बना लिया, इतना प्यारा इतना बड़ा एयरपोर्ट तो बना लिया, लेकिन उन्होंने अपने रोड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो आपके जो गेस्ट आते हैं, जो अदर कंट्री से लोग आते हैं, उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। रोड्स जो है वो बहुत प्यारे बना दिए उन्होंने, साथ साथ के जो रोड्स हैं एक्सप्रेस वे बना दिए, कनेक्ट किया जा रहा है, फ्लाईओवर भी दिखा रहे हैं, अंडरपास देखा वो दिखा रहे हैं, कमाल कर दिया, लेक भी है साथ में। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे आपकी कंट्री का, और आपका नाम जो है वो इसी वजह से वो पूरी दुनिया में वो चंगी जो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसी तरह का बना रहे हैं, उसी तरह का जो आर्किटेक्चर वहां पे काम करते थे, जो इंजीनियर्स वहां पे थे, वही जो है वो यहाँ पे उन्होंने हायर किए हैं, वही आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स वही इधर काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले ना तो सिंगापुर था बड़ा खूबसूरत, और फिर ये दूसरा ये साउथ एशिया का ये बनेगा, साउथ एशिया का सबसे खूबसूरत जो एयरपोर्ट है वो इसे कहा जाए तो गलत ना होगा, और बड़ा भी है बिल्कुल, और इतना बड़ा है। और देखें रोड्स उन्होंने ज्यादा खुले कर दिए हैं ताकि आपकी ट्रैफिक को कोई मसला ना हो। आपकी ट्रैफिक उन्होंने मेट्रो रेल भी उनके साथ कनेक्ट कर दी है, अंडरग्राउंड जो है वो उसको भी जो मेट्रो है रेल है उनकी वो, और फिर वो एलिवेटेड, और इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे है, दूसरी ट्रैफिक है, दूसरी जो चीजें हैं वो भी उन्होंने उनके साथ कनेक्टेड कर बिल्कुल। यही चीजें होती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है तो और ये मैं कहता हूँ टूरिज्म पॉइंट बन जाएगा ये, तो देखें इकोनॉमी हब बन जाएगा, सारी दुनिया ने आखिर लैंड करना होता है बिल्कुल। और तो बांग्लादेश के जितनी पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी वजह से उन्हें जरूरत भी है कि पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं, जो वजीर मशीर आते हैं, वो उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े वो जब यहाँ पे आए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और अली मुर्तजा को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।